All right, guys, welcome to another episode of the Uncapped Indians. I think this should be the 10th or the 11th episode. But yes, before we start off, a big thank you to all our members. We've got 10 members now. And yeah, I mean, thank you to all. Huge shout out to all for supporting us so far. And we just urge that those of you, at least, who do not want the membership or, who are not very keen on it, at least, you could, give us a like or a share because that is something that is free. So at least support us. And of course, those people who definitely like to support us as far as membership is concerned. There is this join button right beneath our video. A lot of people have been asking as to how to become members. So there's this join button right beneath our video. You can go ahead and click that and pay as you like, guys. Yes, before we start off, a very, very sad news from the world of cricket. Graham Thorpe, he's passed away at the age of 55, former England coach, a former England opener. Unfortunately, as he said, from his autobiography, which is Rising from the Ashes, he happened to be one of those people in the England circuit who played more away games than home games. And he said that to be a good tourist, you had to really force thoughts of home out of your mind. And I was very reluctant to do that, fearing that it might have some permanent effect, and that sort of had a lot of effect when he became the coaching staff even during the 2019 World Cup in England's campaign. So yes, that's one side news. uh yeah, so what are we going to discuss today? It's going to be India versus Sri Lanka, which is the second ODI, and of course we have the third ODI tomorrow. And yeah, there's TNPL, and of course West Indies versus South Africa. Starting off, Dhwanil, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, सेकंड ओडीआई मैच होता है. एक टर्निंग विकेट, एक ग्रिपिंग विकेट. श्रीलंका बैटिंग करता है, 240 का स्कोर बनाता है. इंडिया 97 फॉर नो लॉस होता है. ठीक है, रोहित शर्मा मार मार के पागल कर देता है. और फिर उसके बाद ये क्या हो गया? इस व्हाट मैच को हैपेंड? नाम देना इस मैच को नाम देना चाहिए डेजा वू। ये तो पहले हम देख चुके हैं। अच्छा, ओ 2 दिन पहले ही तो हम देख चुके हैं ये। तो अगेन एज आई सेड द विकेट वाज हाउ इट बिहेव्ड। जैसा था वैसा था, बॉल स्पिन हो रहा था, ये बात हमें पता है। आई फील दैट गंभीर डिड नॉट चेंज द टीम बिकॉज वो चाहता था कि यार आप अलग अलग कंडीशन में बैटिंग करो। आप देखो कि टफ कंडीशंस में क्या होता है, आप देखो कि जब आपके पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं तो क्या होता है। आप इजिली श्रेयस अय्यर या किसी शिवम दुबे की जगह आप किसी स्पिनर को खिला सकते थे आराम से। रियान पराग आ सकता था if necessary, but I think he wanted to throw a challenge there. That challenge didn't quite get challenged, तो हम लोग हार गए। एंड यार होगा ना यार, कभी कभी तो होगा, कभी ना कभी तो श्रीलंका विल विन अगेंस्ट अस। नो, इट्स नॉट दैट ये ताली बजाने नहीं आए वो लोग भी यार। वो लोग भी क्रिकेट खेलने आए हैं ना। आई थिंक दे प्लेड एक्सीलेंट क्रिकेट। फुल क्रेडिट टू देम यार। वेलागे जो लास्ट में रन बनाया है, वो मजाक की बात नहीं है जिस तरह उसने रन बनाया है। आई मीन फॉर 21 year old टू कम एंड स्टार्ट स्मैशिंग phenomenal Indian bowling lineup, hats off to him. He changed the game. और ये ना इवन एक चीज ऑब्जर्व करेंगे। कमिंग टू मैग्निस ऑल्सो, जिसने वो आया और फिर उसके बाद उन लोगों ने कुछ अच्छे, मतलब अच्छी पार्टनरशिप करी यार. कामिंडो मेंडिस ने आई थिंक 40 रन बनाए, और वेला लागे ने कुछ 34 रन बनाए. उन लोगों की बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी 70 ऑड की. तो पर वॉशी बोल्ड वेल, कुलदीप बोल्ड वेल, बट बहुत सारा तूने कहा ना अभी कि मतलब यार इसको भेज सकते थे, वो कर सकते थे, ये कर सकते थे, बट कुछ ज्यादा चॉप एंड चेंज नहीं हो रहा है. मे बी ही इज ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट टू मच. हमने देखा कि रोहित शर्मा ने भी 2 ओवर डाल दिए. नहीं, एक चीज पता है तेरे को, और ये मैंने इंडिया के बारे में आई थिंक पिछले 1-2 साल में नोटिस किया है। और देखना, हम पहले बहुत अच्छा खेलते हैं, मैच अपना पूरा ग्रास्प में ले लेते हैं, एंड देन सम पॉइंट इन टाइम इन द मैच हमारा पूरा ग्रास्प पे है, इट्स इंटायरली इन आवर कंट्रोल, वी सॉर्ट ऑफ लेट इट गो। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी गॉटन अ मैच लेट गो। बहुत टाइम ऐसा होता है जब हमने 6-7 विकेट गिरा दी होती है, देन वी सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, probably the opposition gets more pumped up or whatever that reason is, we always tend to
हैव अ पार्टनरशिप दैट टेक्स द मैच। आज अगर आपने देखा है तो ऑफ कोर्स वंडरसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बट अगर आप 200 का टारगेट होता तो हम जीत जाते ये मैच, आराम से जीत जाते। जो आखिरी वाली पार्टनरशिप है ना श्रीलंका की, वहां पे प्रॉब्लम है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन एंड बैटिंग ऑर्डर, अब Abhishek Nair has come into everyone's defense and said, middle order is middle order. Whether you bat at 5, 6, 7, eventually the entire middle order got all out, like wickets fell from 15 to the 25th over. तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से नंबर पे आ रहे हो, सब 10 ओवर के अंदर ही आउट हो गए हो। सिर्फ 4 बैट्समैन थे डबल डिजिट में, ठीक है, उसमें से एक, ठीक है, शुभमन गिल और रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली, दैट इज आल्सो आई थिंक सम 14 ऑड, एंड देन अक्षर पटेल। सो देयर आर 3 प्लेयर्स हु वर डिसेंट, व्हिच इज शुभमन गिल, रोहित शर्मा एंड अक्षर पटेल, ठीक है, बाकी सब खत्म, ठीक है। और अगर तुम देखो, शुभमन गिल जब रोहित शर्मा के साथ बैटिंग कर रहा था, और फिर उसके बाद जब जैसे बैटिंग कर रहा था, मतलब तूने वो देखी है एक पिक्चर टॉम क्रूज वाली, वो कहता है ना, विथ मी विदाउट मी हाँ तो कौन सी है पता नहीं, वो नाइट नाइट कुछ तो करके है वो मूवी। हाँ वो वैसा ही वाला सीन हुआ उसका रोहित शर्मा के साथ। आई डोंट नो, फॉर सम रीजन आई फाउंड शुभमन ट्राइंग अ लिटिल हार्ड आफ्टर रोहित गॉट आउट। हम्म, Maybe he was trying to up the ante, क्योंकि his strike rate was also not 100 or something like that. So maybe हम्म, he has been given the कि आप जो है आप जाके मारो, और मार के खेलो, ये भी हो सकता है कि मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेलो। So maybe in the quest of attacking more, he fell short. But rest, I think एक बंदे को तो हमें देना ही पड़ेगा क्रेडिट यार, मतलब आसलंका picked up 3 wickets, great captaincy, बट जेफरी वैंडरसे, ठीक है, दाम्बुला का एक बंदा आता है, 6 विकेट लेता है, और खत्म, यार मैच खत्म। कभी कभी ना हमें उस प्लेयर की पीछे की कहानी उसके अच्छे परफॉर्मेंस के बाद ही पता चलती है। एंड हम लोग तभी देख, मतलब जैसे वंडर से वाज कॉल्ड अप ऑन सैटरडे, फोन करे घर से उठाया उसको कि भाई सरंगा इज इंजर्ड, तेरे को आना पड़ेगा। वो टीम में भी नहीं था, हम्म, उसको लेके आए। हम्म, ही मेड हिज डेब्यू इन 2015, इन ही वाज प्लेइंग अ मैच इन वेस्ट इंडीज, और उसको एक नाइट आउट के लिए श्रीलंका क्रिकेट ने 1 साल तक बैन किया था। एंड देन ही कंटिन्यूअसली परफॉर्म्ड इन डोमेस्टिक क्रिकेट, एंड ही हैड ऑलमोस्ट गिवन अप होप कि भाई अभी तो इतना ट्राई कर रहा हूँ, नहीं होगा। एंड देन टू कम ऑन अ बिग स्टेज एंड टेक 6 विकेट्स। हम्म, आई थिंक अगर आप क्रिकेट न्यूट्रल फैन हो ना यार, या फिर आप देखो, हम, मैंने पहले भी बोला है, अगर आप इंडिया का मैच देखोगे ना, आप थोड़ा इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हो गेम, एज इन बिकॉज वी स्टे हियर एंड आई आल्सो गेट, एंड आई एम अज्यूमिंग तुझे भी हो जाता है कि थोड़ा सा इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जहाँ पे हम थोड़ा सा लॉजिक को डिफाई करना शुरू कर देते हैं। बट वनडर से को सोचो यार, तू इतने साल, 9 साल पहले उसने 9 साल से खेल रहा है, सिर्फ 22 ओडीआई है, वो आके अगर 6 विकेट लेके, एंड ही ब्रेक्स इनटू अ प्रेयर, understand the emotions that player is going through. When they win the match, he just says a small prayer, thanking God. तो उस बंदे के अंदर क्या इमोशनल रोलर कोस्टर चल रहा होगा यार। And to take wickets of Kohli, KL Rahul, Shreyas Iyer, Rohit Sharma, Shubman Gill, to break the backbone of India. I think games while like this will happen. It's just that this time we were at the receiving end. The हम्म, ऋषभ पंत का कमबैक हुआ था तो सब लोग बोल रहे थे अरे वाह एक्सीडेंट के बाद। So comebacks are there in cricket, and sometimes you have to be at the other end, and उसकी बॉलिंग देखना, there is nothing extraordinary he did. The pitch was assisting him. He was bowling on length. Okay, कोई ऐसा स्ट्रेटनर डाल दिया, वो डाल दिया, प्रॉपर लेग स्पिन बॉलिंग। विराट कोहली जिस बॉल पे आउट हुआ प्रॉपर लेग स्पिन था, इट्स जस्ट दैट ही प्लेड ऑन द रॉन्ग लाइन, बॉल केम फ्रॉम लेग इन मिडिल एंड स्ट्रक इन हिज पैड्स। एंड दीस गाइज हैव एक्सीलेंट एवरेजेस अगेंस्ट लेग स्पिनर्स, सो ऐसा नहीं है कि हम लेग स्पिनर के सामने वो करते हैं, इट्स जस्ट दैट ही वाज टू गुड ऑन दैट डे। हम्म, रिमाइंड्स मी ऑफ 2008 कराची एशिया कप, द मिस्ट्री स्पिनर अजंता मेंडिस, he destroyed India। 6 विकेट ली थी उसने। He could not read him. He could not read that guy. But he's not a mystery spinner, Vander say, but yeah. मतलब से फैम, फादर ऑफ 3 इनफैक्ट। अगर तेरे को पता हो कि 2022 का जो ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप था, उसमें भी बेचारा टीम में था, बट Hmm. खेलने नहीं मिला। और एक ही टेस्ट मैच खेला है आज तक, मतलब ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के साथ, मतलब ये लोग श्रीलंका में खेल रहे थे 2022 में, ठीक है, उसमें बेचारा ज्यादा, मतलब बैटिंग ही नहीं है, मतलब बैटिंग करा उन लोगों ने,
पर ऑस्ट्रेलिया ओनली बैटेड वंस एंड आई थिंक जो सेकंड बैटिंग थी उसमें सिर्फ 10 रन चाहिए थे वो चेस करने के लिए. तो couldn't really show his bowling prowess, but yes, only time will tell. He's in his early 30s, so still a little bit time to go for अंदर से at least अगर इसको कुछ करियर मिलने को बन जाता है, एंड ऑफ कोर्स लंदन प्रीमियर लीग में तो खेलता ही है. So from there on, obviously, lot of opportunities lined up, and yeah, so third ODI, क्या लगता है कि मतलब what should India do now for the third ODI? सेम भाई, पहले बॉलिंग करो, मतलब पहले इंडिया को बॉलिंग करो, उनको बोलो अभी सेकंड नाइट्स में लाइट के नीचे बैटिंग करे वो विकेट के ऊपर. जब वो 50-60 ओवर पुराना हो जाता है ना, वो इधर भाई तो ये लगता है इतना गंभीर ये इतना कहेगा स्पिन हो कि रहा है यार. यार मेरे को पता है 2 बार बैटिंग करने को मिला, ठीक है, लाइट्स में, और 1 बार टाई हुआ और 1 बार जो है मैं हारा. हाँ, अब मेरी वही जिद तो है कि मैं अपने बंदों को लाइट्स में ही बैटिंग करा के लाइट्स उसमें ही जिताऊंगा. ऐसा कर सकता है वो, वो ऐसा हो सोच सकता सकता है, बट वो हो सकता है, लेकिन जिस तरह बॉल्स आ रहे हैं यार, वो बॉल यार, तेरा चरित असलंका इज एन ऑलराउंडर बट इज पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर. वो है. बस बॉल छोड़ रहा था और बॉल स्पिन हो रहा था. और ये इस प्रेमदासा में नहीं हुआ है, इससे पहले जब पालेकल में मैच था, वहां पे भी लास्ट T20 में यही हुआ है. द विकेट्स आर क्रम्बलिंग एंड स्पिनिंग यार. If you see the kind of dismissals that even Sri Lanka had, they were soft dismissals. That means that they were opening the face of the bat a little too early, closing the face of the bat a little too early, और बॉल बहुत स्लो आ रही थी. हम्म. भाई ऐसी पिच बनानी है तो फिर ठीक है, फिर हम भी लेके आते हैं वापस रविंद्र जडेजा और उन सबको, तो 4-5-6 स्पिनर खिला लेंगे हमको. So see, I'm नहीं, not बट यू आर complaining about the सपोज टू pitch. प्ले It's an स्पिन वेल interesting ना यार. challenge. यू आर Yeah, सपोज टू प्ले स्पिन. it is an interesting challenge. I'm not complaining. Rohit Sharma has told all of us that we will not complain when we go there, and you don't come and say there is a puff of dust, puff of dust. So not complaining, but okay, if that's how they want to go about, then you go about that way. But I think we can expect India to come back strong and sort of level the series now at least, क्योंकि अब 1-1 ही हो सकता है. That's the best result that India can get in their favor. So Virat yeah, Kohli, Virat Kohli will Virat, play. Virat Hmm. Kohli will play. Okay. Decider है ना, final. Virat Kohli is a big match player. So let's see what we have in store. Moving on, there's something else that got concluded this weekend. It is called as the Tamil Nadu Premier League, and Dindigul Dragons, Ashwin's team, they've won the 2024 season. कैसा लगा, मतलब तूने फॉलो किया, क्या लगा तेरे को TNPL के बारे में? uh, मैंने थोड़ा बहुत फॉलो किया. मेरे को सबसे बेस्ट लगा क्राउड. भाई पैक स्टेडियम, ठीक है, सब लोग देखने आया, सब पैक स्टेडियम. We want sixer, we want sixer. And for the first time, I मतलब because I've not been there to the south of the country, मैंने realize किया ये लोग duck not out बोलते हैं. Duck out, duck not out. हम लोग बोलते हैं ना duck पे गया ये duck out बोलते हैं, duck not out बोलते हैं. ये भी मैंने देखा. There was a very good commentary team also. W. Raman was there. S. Badrinath was there. For the final, they called Rahul Dravid to hand over the trophy. You know, there is DRS, there is sub impact rule. It's a very, very, very well organized tournament. And अभी वो फॉरेन प्लेयर्स, फॉरेन मतलब आउटसाइड के स्टेट प्लेयर्स कुछ थोड़े अलाउ करते हैं, आई थिंक एक या दो, आई एम नॉट वेरी श्योर. But it's one of the most well organized franchise league for domestic circuit. मजा आ गया देख के. The kind of batting, bowling, the kind of talent that they have, the kind of spinners that they have. You know why Varun Chakravarti is Varun Chakravarti, because the kind of intensity that he plays TNPL in is also quite like बहुत अच्छे बैट्समैन है यार वहाँ पे. ऐसा नहीं है कि कोई भी खेल रहा है. But very happy for Individual Dragons because वो लोग fourth पे थे when they qualified. Then they had to play two qualifiers and finally they had to beat the Kowai Kings because वो लोग एक ही मैच हारे थे अब तक. And M. Shahrukh Khan was very confident. He said we haven't played our best cricket yet, but ये final में हम दिखाएंगे best cricket खेल के, etc. etc. But then when you're up against a man like Ravichandran Ashwin, it is it is difficult. It is difficult to win tournaments in when he is the captain. He's a genius. but he said that, मतलब कि मेरे को अपने आप को अभी रीइन्वेंट करना पड़ेगा एंड ऑल दैट. आई फेल्ट द नीड
But a word on Ashwin's performance, man. I mean, as a captain, because he's been there throughout the journey for the Nickel Dragons. ये उनका second season था, I think, Tendulkar का. But a word on Ashwin. What did you feel? और तो बहुत छोटा वर्ड है यार। रविचंद्र अश्विन ना, रविचंद्रन अश्विन को ना एक बार बैक में प्रॉब्लम हुआ था जब वो क्रिकेट खेल रहा था। तो उसको बोल दिया कि आप सीम अप बॉलिंग नहीं कर सकते, आप सिर्फ बैटिंग कर सकते हो। तो उसकी मम्मी ने उसको बोला तू क्या फील्ड में खड़ा रहता है, जाके कुछ कर। बता रहे मैं बॉलिंग नहीं कर सकता ना, बोलता ठीक है ऑफ स्पिन डाल। तो ऑफ स्पिन चालू किया। और जब उसके पास फ्री टाइम था ना, वो बॉल बैडमिंटन खेलता था, जिसमें भी उसने तमिलनाडु को रिप्रेजेंट किया है। तो ही हैज ऑलवेज बीन दिस सॉर्ट ऑफ पर्सन हु ऑलवेज लुक। और तेरे को पता है उसको ऑफ स्पिन एक्चुअली किसने ज्यादा बोला करने के लिए? कृष्णमाचारी श्रीकांत का जो बेटा था ना, अनिरुद्ध श्रीकांत, उसने उसको बोला कि यार तू ऑफ स्पिन कर, और उसने सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया उसको ऑफ स्पिन करने। तब जाके धीरे धीरे ही मूव्ड ऑन फ्रॉम बैटिंग टू ऑफ स्पिन। उसके कोच ने बोला कि तू ऑफ स्पिनर नहीं लिखेगा, तू बैट्समैन लिखेगा, क्योंकि तू ऑफ स्पिनर लिखेगा ना तो तमिलनाडु में दो टीम मेंबर्स हैं जिनकी जगह नहीं होगी फिर आगे खेलने के लिए। तो तू बैट्समैन लिख। तो 2 साल तक बैट्समैन लिखता गया। उसके कोच ने आगे पूछा कि भाई तू, मैं तेरे को जो भी बोल रहा हूँ तू मान रहा है, तू क्यों ऐसा कर रहा है? तो उसने बोला कि सर आप जो बोलते हो अच्छे के लिए बोलते हो, तो आपने बोला तो मैंने किया। उसका कोच उसको बोलता है तू एक दिन एज एन ऑफ स्पिनर खेलेगा इंडिया। तो ओके, दैट्स रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन at one point in time, uh, when he was very young, he had an almost fatal injury that made sure that he could never play cricket. It is through his mother, father, family, सब लोग ने मिलकर उसको पुश किया, तब जाके वो एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बना। उसकी वेस्ट लाइन को बहुत लोग वो करते थे। जब वो फील्डिंग करता था ना, तो लोग बोलते थे अरे ये मोटा है, साइड से है, भाग नहीं पाता फील्ड में। एंड अश्विन यूज्ड टू टेक दैट टू हार्ट। यार मैं मोटा नहीं हूँ, मैं कैच कर सकता हूँ। एंड यूज्ड टू गिव दैट मच टाइम कि भाई मैं फील्डिंग पे भी फोकस कर सकता हूँ, और मेरे को फील्डिंग पे भी फोकस करनी है। मैं कैसे टीम को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अंडर 17, अंडर 19, अंडर 20। फ्रॉम दैट पॉइंट हिज थिंकिंग हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस। एक बार वो नेट प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है, उसने श्रीलंका गया था, उसने रंगना हेरात ने उसको आउट किया था कोई गोपालन ट्रॉफी में। तो बोला कि यार ये तो अलग बॉल डाला इसने, तो ये तो मेरे को दूसरा मेरे को कैरम बॉल लग रहा है। तो वो अगले दिन गया तमिलनाडु के नेट प्रैक्टिस में कैरम बॉल डालने। वो कैरम बॉल पहली बार डाल रहा है सीजन बॉल से, तो बॉल शॉर्ट पड़ रही थी। तो मुरली विजय बोला यार क्या टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा, यार तू अच्छे से बॉलिंग कर, ये कोई तेरा वो प्रैक्टिस करने नहीं आया है, तू सीधा बॉलिंग कर। तो गुस्सा हो गया, वो कोच के पास चला गया। बोला जब बैट्समैन बैटिंग करता है और वो इधर रिवर्स स्वीप मारता है, स्लॉग स्वीप मारता है, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। हम लोग जब कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इनको प्रॉब्लम होती है। फिर उसको डब्ल्यू वी रमन साइड में ले गया, उसको बोला कि भाई तू ऐसा नहीं होता, पहले आप नॉर्मल नेट में प्रैक्टिस करो, फिर आप करो। I'll tell you something very interesting about Ashwin. Okay? Ravichandran Ashwin realized that to get successful at the highest level, ठीक है, आपके पास सिर्फ एक ऑफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर आप आर्म बॉल डालोगे या फास्ट डालोगे तो कोई अच्छा बैट्समैन ना आपको पकड़ लेगा, आपकी लेंथ से और आपकी स्पीड से। तो उसने क्या किया, उसने ऑफ स्पिन की ग्रिप पकड़ी, वो बॉल को एकदम पाम में डीप रखा, और उसने ऑफ ब्रेक की तरह ही डाला। बट दिस टाइम बॉल फ्रिस्बी की तरह उसके रिस्ट से निकलता था। So if that ball lands on the seam, then it'll turn like an off break. But if it lands on the leather, it goes straight. And that is where the straighter one came in. उसे जो उसका जो दूसरा है ना, उसको सुडाकू बोलता था, सुडाकू। वो भी उसने एक टेनिस बॉल प्लेयर से सीखा था। और इस बार तमिलनाडु प्रीमियर लीग में उसने बोला था कि आई नीड टू वाइडन माय होराइजन। दैट मीन्स कि यार एज अ बैट्समैन आई नीड टू प्ले मोर स्क्वायर ऑफ द विकेट on this side and this side. At the age of 37, can you believe that this guy is still learning cricket and still trying to, improve his game, still talking about the game? And we've lost a gem in Ravichandran Ashwin as an all-rounder. Trust me, he could have been amazing with the white ball. And that's why I always, and that's why I agree with Gautam Gambhir when he said that we are yet to see your batting prowess. And we saw this TNPL. The way he has smacked, pulled, flicked, cut, outstanding batting, back-to-back 50s Mari, Ravichandran Ashwin, one down, two down. So he's still looking to improve. And a lot of credit goes to W Raman for Ravichandran Ashwin also. उसने उसको बहुत सिखाया है प्रैक्टिकली कि आप फास्ट भाग के आओगे तो बॉल कैसे आएगा, अब 10% कम भागो, अब 5% ज्यादा तेज भागो, अब बॉल थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज डालो, अब ग्रिप चेंज करके डालो, अभी स्पिन मत कराना, अब स्पिन कराओ। तो एंड आई रिमेम्बर एन इंसिडेंट विद धोनी आल्सो। सीएसके और आई थिंक पंजाब या आरसीबी के साथ क्रिस गेल खेल रहा था, और क्रिस गेल ने रविचंद्रन अश्विन को सिक्स मार दी।
एंड धोनी वाज लाइक एक काम कर, इसको जोर से एक बॉल डाल, क्रिस गेल सिंगल लेगा और उसको ऑफ स्ट्राइक कर दे। उसने बोलता ठीक है, उसने डाला स्लोअर, क्रिस गेल आ गया है आउट। और धोनी बोलता है, ओए ये क्या किया, मेरे को लगा तू उसको स्ट्राइक देगा, तेरे में तो बहुत हिम्मत है, तुमने तो स्लोअर वन डाल दिया। एंड दैट इज हाउ एमएस एंड अश्विन वो कनेक्ट। तो Ashwin is an outstanding thinking cricketer. He can become a great vice captain in red ball. देखते हैं। But yeah, this is why TNPL. अभी This तो is why करियर करियर ही ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रहा है भाई, अभी कहाँ से वाइस कैप्टन। नहीं यार, वो आउटस्टैंडिंग है वो। बड़ा अनिल कुंबले को भी काफी टाइम बाद कैप्टनसी दिया था। I think when he was 38 or something, he started captaining India, and I remember clearly क्योंकि वो 2008 वाली वो जो मंकी गेट वाली सीरीज थी ना, हम्म, साइमंस हम्म, वाली, उसमें हम्म, ही वाज द कैप्टन। तो उससे पहले ही इनफैक्ट एक दो सीरीज पहले ही उसको कैप्टनसी दे दिया था, एंड आई थिंक दैट हैपेंड आफ्टर 2007 का इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज। हम्म, And then after the T20 World Cup, Dravid said that he's quitting, and then Anil Kumble came in, and then he captained for about 2 years, 2010 की border Gavaskar trophy तक। फिर उसके हम्म, बाद after he could not play, I think 2 games out of the 4 that happened in India, हम्म, and then he took retirement. But it was धोनी who called him up, क्योंकि हम जीते थे वो, उसमें से 2 मैचेस हम जीते थे जो एक्चुअली नहीं खेला था बेचारा। So Dhoni called him up and called Saurav Ganguly also कि आप आओ, आप ही ले लो ट्रॉफी। और गांगुली को तो उसमें बीच में कैप्टनसी करने को भी कैप्टनसी बोला कराई थी था ना, वो स्लिप पे खड़ा हाँ, किया था, गांगुली स्लिप आप ऐसे ही पकड़ करो, के। अब एक ही विकेट बचा है, आप जीत जाएंगे अभी आप ही। हाँ, But काफी TNPL, आइकॉनिक। man, it's been responsible for a lot of players. In fact, साई सुदर्शन को देख लो, आप शाहरुख खान को देख लो, वॉशिंगटन सुंदर को देख लो, टी नटराजन को देख लो। I mean, all these players have in fact come in into the Indian setup, and also to the IPL setup, if not because Shah Rukh Khan hasn't played, of course, but at least to the IPL setup, TNPL काफी players देता आ रहा है since 2016, and in fact. Just to tell our viewers, जब CSK in fact suspend हुआ था 2016 में, तब एन श्रीनिवासन ने कहा कि यार it's important that we at least try and revive cricket in Tamil Nadu, and hence he came up with the idea of TNPL। उसने कहा कि भाई 8 फ्रेंचाइजीज होंगी, 3 वेन्यूज खेले गए थे, एंड द 3 वेन्यूज वर चेन्नई, तिरुनेलवेली एंड नाथम, या नेतम, ऐसे ही कुछ करके बोलते हैं। एंड the one thing that it could achieve, which the other leagues like Maharashtra Premier League and Karnataka Premier League could not, was that it could achieve franchisees जो जिन्होंने टीम खरीदी, क्योंकि it हम्म, was backed by a lot of good people हम्म, and a lot of powerful people also in Tamil हम्म, Nadu cricket, तो इसीलिए मतलब उनको franchisees मिला। And N. Srinivasan said, in fact, and I quote, that the main idea behind TNPL is to bring cricket to the districts of Tamil Nadu and explore local talent. हम्म, So the first season had about 27 games, and it was played amongst 8 districts: Karaikudi, Dindigul, Kanjipuram, Madurai, Coimbatore, Tiruvallur, South Chennai, and Toothukudi. And इसकी वजह से क्या हुआ कि एक ना टूर्नामेंट होता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द बूची बाबू टूर्नामेंट। हम्म, सो डोमेस्टिक क्रिकेट का जब शुरुआत होती है, ठीक है, एज अ कर्टन रेजर, दिस टूर्नामेंट वाज प्लेड, एंड ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। दिस टूर्नामेंट स्टार्टेड इन 1909, ठीक हम्म, है। एंड बिकॉज ऑफ टीएनपीएल, क्योंकि वो भी सेम टाइम पे खेला जाता है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा जो है शिफ्ट करना पड़ा उसे 2016 में, एंड 2017 से तो इसे खेला ही नहीं गया। सो जस्ट अ लिटिल बिट ऑन दिस टूर्नामेंट, इनफैक्ट कि जिनका नाम है, जिनके नाम पे बूची बाबू, जिनको दिया गया था नाम बूची बाबू, उनका नाम मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेस अप द नेम ऑफ अ लेजेंड विच इज मोथवर अप्पू वेंकटा महिपाथी नायडू, ठीक है। सो दिस गाय वाज वेरी वेरी मतलब he was a ardent learner of the game. He wanted to play the game, and he was the one who was responsible to spread the game in the Madras presidency। और मद्रास प्रेसिडेंसी से उसने क्या किया कि यार उसने ना लोगों को निकाला, टैलेंट्स को निकाला। उसने कहा कि यार मैं ना जितने भी इंग्लिश हैं, मतलब उनके साथ गेम्स कराऊंगा, और देखूंगा कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड टीम कौन सी है, और उस हिसाब से मद्रास क्रिकेट क्लब, ठीक है, हम्म, उन लोगों से क्या कहते हैं, उनको रिप्रेजेंट कराऊंगा, जो सबसे टैलेंटेड लोग होंगे। एंड उसने कहा कि वो पहला जो गेम कराना था ना बिफोर फॉर द मद्रास क्रिकेट क्लब वर्सेस द इंग्लिश, वो उस गेम से पहले ही पास्ट हुए, हम्म, विच वाज इन 1908।
एंड देन फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उनके नाम पे ही उनको पहले उनको यही बुलाते थे, बूची बाबू बुलाते थे, तो उन्हीं के नाम पे ये टूर्नामेंट शुरू हुआ। एंड काफी सारे मतलब स्टेट से, इट इज बेसिकली ऑन इनविटेशन, काफी सारे स्टेट से जो है लोग आते हैं, एंड कंपनीज भी खेलती हैं इसमें। सो देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु प्लेड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसोसिएट सीमेंट कंपनीज, एसीसी बोलते हैं इसे, निरलॉन। सो एसीसी से इनफैक्ट खेलने बहुत पहले 1971 में आए थे सुनील गावस्कर भी, ठीक है। एंड श्रीकांत बोलता है कि 1971 में आई वाज इन सम 7th स्टैंडर्ड और समथिंग, एंड द वर्ल्ड वांटेड टू नो, तमिलनाडु वांटेड टू नो हु सुनील गावस्कर वाज, सो वी हैड अ जैम पैक्ड स्टेडियम। तो उस टाइम पे ये सब भी हुआ था। पर टीएनपीएल ऑफ कोर्स उसकी वजह से मतलब थोड़ा सा गैप आया इस टूर्नामेंट में, और 5 साल के लिए खेला नहीं गया। एंड अगेन 2023 में बूची बाबू टूर्नामेंट वाज अगेन ऑर्गेनाइज्ड। बट यस, थोड़ा सा हिट भी हुआ है टीएनपीएल। देयर वाज अ in 2019 a big match fixing scandal issue as well, and a lot of players in fact mentioned to the BCCI ACU, which is the anti corruption unit, कि यार हमें काफी लोग अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। एंड वी हैड अ फॉर्मर इंडियन ओपनर बाय द नेम ऑफ मिस्टर वीबी चंद्रशेखर, जिन्होंने सुसाइड भी किया। अनफॉर्चुनेट था ये काफी, और इस सुसाइड को इनफैक्ट लिंक किया गया था इस पूरे स्कैंडल के साथ। But of course, nothing was proven, etc. But a lot of people mentioned that because he owned a team, which was VB Tiruvalluvar Veerans, उनको लग रहा था, and he was under a lot of debt, and hence, unfortunately, he committed suicide. But 2016 was the first season, and Albert Tuti was the first uh, champion, or the inaugural champions rather. And Chepok Super Gillies has won it 4 times, and has been joint winners in fact with Kova in 2022, and वो जीते हैं 2017 में, 2019 में और 2021 में। And 2023 Kova won it last year. And of course इस साल दिंडुकल ड्रैगन्स अश्विन ने जीत लिया है। बट आई थिंक एक बहुत अच्छा सिस्टम है यार, जैसे तू अभी बता रहा था तमिलनाडु का। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा सिस्टम है उनकी। अगर लोकल क्रिकेट अगर आप देखो, देर आर अबाउट 37 डिस्ट्रिक्ट्स विद इन तमिलनाडु, एंड देर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस एज वेल। एंड इसमें कई सारी एकेडमीज और क्लब्स खेलते हैं। एंड yeah, but having watched TNPL, it gives me a sense of a lot of talent coming in from all these districts. And but it is very unfortunate that not many people, though they are extremely talented and they've actually proved it, in the domestic circuit as well. Unfortunately, they haven't got the opportunities that they kind of deserve. And one such talent, for me, and I saw him during this year's TNPL also doing extremely well, is बाबा इंद्रजीत। सो पिछले साल का ना विजय हजारे ट्रॉफी चल रहा था, सेमीफाइनल, ठीक है। हरियाणा वर्सेस तमिलनाडु। हरियाणा ने टॉस जीता, बैटिंग करी, 293 मारे। तमिलनाडु की बैटिंग आई, बाबा इंद्रजीत, ठीक है, उस टाइम एक आइस बात ले रहा था। वो बाहर आया, फिसला, और सीधा मुंह के बल गिरा, और उसका जो अपर लिप था ना, उस पे एक डीप सा कट आ गया। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ये तो बहुत सारा खून बह रहा है, इसको स्टिच करना पड़ेगा, अब आप मैच खेलने नहीं जा सकते, तो बंद करो। बाबा इंद्रजीत ने कहा इसको टेप कर दो, ठीक है, स्टिच हम मैच के बाद कर लेंगे, ये सेमीफाइनल है। उस बंदे ने विद द टेप माउथ, वो कॉल नहीं कर पा रहा था रन्स के लिए, विद द टेप माउथ खेला। ही टॉप स्कोर फॉर तमिलनाडु विद 64 रन्स, ठीक है। तमिलनाडु अनफॉर्चुनेटली वो मैच हार गया, ठीक है, दे ओनली कुड स्कोर 230। बट लुक एट द ऑडेसिटी, ठीक है। उसका रेपुटेशन है तमिलनाडु में, ही इज टीएन्स टफ रन्स मैन, ठीक है। और उसको अश्विन बहुत ज्यादा रेट करता है टू प्ले अगेंस्ट स्पिन। और उसका ना एक अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स है कि 2017 की शुरुआत से, ठीक है, वो 42 फर्स्ट क्लास गेम्स खेल चुका था बिफोर द क्वार्टर फाइनल दैट दे हैड टू प्ले अगेंस्ट सौराष्ट्र, ठीक है। और उसका एवरेज 63.60 था, विच वाज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड अमंगस्ट बैटर्स हु हैड मिनिमम प्लेड 40 फर्स्ट क्लास गेम्स। एंड इवन इन दिस टीएनपीएल फाइनल, ठीक है, उसने 32 रन मारे, जो कि काफी क्रूशल था। सो ओवरऑल अगर मैं टीएनपीएल की बात करूं, he was the third highest run getter, I think, with some 286 runs, and with a strike rate of 133, which is
okay enough considering the kind of pitches that you get for TNPL and considering the kind of pitches that you actually get in Tamil Nadu. ठीक है, वो काफी ग्रिपिंग होती है, काफी टर्निंग होती है, तो बैटिंग इतना आसान नहीं होता. तो इसलिए वहां से जितने भी बैटर्स निकलते हैं ना, उनमें माना जाता है कि काफी क्वालिटी है. अनफॉर्चुनेटली ठीक है, वो हायर लेवल पे वहां तक क्या कहते हैं, अपने आप को ज्यादा प्रूव नहीं कर पाए. और उसका एक भाई भी है, तेरे को पता होगा, ही हैज अ ट्विन ब्रदर by the name of Aprajit, and in fact वो भी बहुत अच्छा खेलता है यार. He played for Chepauk and he captained Chepauk this season, Chepauk Super Gillies, and उसने भी I think some 8th highest or 9th highest run getter है with some 234 runs. So और उसने ना 2012 का वो भी खेला था, अंडर 19 वर्ल्ड कप, जिसमें वो बाबर आजम वाला, उन्मुख चंद, संदीप शर्मा, ये सब थे उस टीम में. So yeah, any specific players that impressed you? Yes, Ravichandran Ashwin. अच्छा, यार मेरे और को तेरा पता वो नहीं है. जनादेव सुब्रमण्यम, वो भी तेरे तो को अच्छा पता है. है एक चीज, तेरे को एक चीज पता है तमिलनाडु में स्पिन अच्छा क्यों खेलते हैं? लाइक व्हाई दे सो सक्सेसफुल अगेंस्ट स्पिनर्स? हम्म. तमिलनाडु में सीवी रमन ने बोला था कि एज अ स्पिनर, ओके, एज एन ऑफ स्पिनर, आपको कोई कवर ड्राइव नहीं मार सकता और आपको कोई कट नहीं कर सकता. ठीक है. हम लोग क्या बोलते हैं, ही इज मेकिंग हिम प्ले अगेंस्ट द स्पिन. वो बोलता है नहीं, अगर आप स्पिनर हो ना, यू हैव टू मेक हिम प्ले विद द स्पिन. बोलता है ऐसा क्यों? बोलता है जिस तरफ बॉल जा रहा है ना, उसी तरफ आप बैट्समैन को नचाओगे. Batsman can't hit you against the spin. He has to hit with the spin. So that is why the quality of batsmanship is so much that these guys know how to hit with the spin, against the spin, where to place it, and हम्म. they're very smart bowlers. Okay, all of them. And I'm not saying Ashwin. I just giving an example of Ashwin because people can relate to. Uh, अश्विन क्या करता है पता है? अश्विन डीप लॉन्ग ऑन रखेगा, एक शॉर्ट मिड विकेट रखेगा, एक नॉर्मल मिड विकेट रखेगा, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग रखेगा, एक पूरी फील्ड वो रखेगा और कवर्स नहीं रखेगा. तो एस बद्रीनाथ कैप्टन था, बोलता है भाई कवर किधर है? बोलता है अगर कवर पे चौका गया, मेरे को बॉलिंग से हटा देना. उसके अगले बॉल उसने विकेट ली बैट पैड. समझ रहा है तू? बिकॉज ही इज आस्किंग द बैट्समैन टू हिट विद द स्पिन एंड नॉट अगेंस्ट द स्पिन. एंड इनफैक्ट दे फोकस सो मच, जैसे दैट अब हम लोग बोलते हैं ना स्पिनर का लेंथ बराबर होना चाहिए. वो लोग बोलते हैं जब तक आपका लाइन बराबर है ना, लेंथ अपने आप पकड़ लोगे आप लाइन पकड़ के रखो बस. And this relation between Ashwin and CV Raman is called there and thereabouts. मतलब इधर और कहीं इधर इधर. तो इसलिए that is why they play spin really well. Dinesh Karthik, Murali Vijay, uh, all of these players. And सिवाय TNPL के ना, ये लोग का वो बहुत स्ट्रांग है. वो इंडिया सीमेंट्स हो गया, जॉली रोवर्स हो गया, अलवा प्रेत हो गया, वो सब के लिए भी बहुत खेलते हैं. और वो बहुत लाइक इट्स लिटरली अ फाइट. पीपल गो टू क्रिकेटर्स हाउस एंड से आप मेरी टीम से खेलो. ये अश्विन और उसके पापा बहुत खुश हो गए थे, अरे ये तो अलवा प्रेट से खेल रहा है ये वो. अश्विन बोलता है नहीं, मेरे को जॉली रोवर से खेलना है, मैं उधर से खेलेगा. तो his parents took him to the house saying कि please apologize that you are not playing from my team. I am not apologizing, it's my cricket. उठ के चला गया बाहर. माँ बाप बोल रहे हैं क्या है ये. But yeah, so Tamil Nadu cricket is, that is why you have such successful this thing, because their grassroots and domestic level is very strong. Very strong. Under 19 team Tamil Nadu की खतरनाक होती थी. I had seen them play once when I was 15, 16 years old. Oof, my God. उसको देख के लगता है तुम नहीं खेल सकते क्रिकेट. You can't, like, too strong. It has recently become a little strong. In the 5 years, the Bachi tournament wasn't organized. In fact, वो इनका क्या कहते हैं, थोड़ा स्लम्प हुआ, नीचे गए. फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वापस पिछले साल एटलीस्ट नॉकआउट्स में क्वालिफाई हुए. But yeah, I mean, for people, for our viewers, there are quite a lot of impressive performances. Of course, Shah Rukh Khan, he's formed really well with the bat and with the Yeah. ball. Also, you've seen him multiple times in the IPL. Of course, there's Polia Moi, who's the highest wicket taker. Polia Moi का एक funny incident भी है. 2023 में he was playing a game against the Dindigul Dragons और उसने ना बॉल, और वो सेलिब्रेट बहुत ज्यादा करता है, जस्ट लाइक हर्षित राणा और कगिसो रबाडा, इन योर फेस वाला बंदा है वो. ठीक है, तो उसने बॉल कराई मिड विकेट पे, छक्का मारने की कोशिश करी थी, एरियल शॉट था, कैच हो गया. ठीक है, एंड उसने ना कूद के सेलिब्रेट किया, मतलब उसके सामने बैट्समैन के सामने ऐसा ऐसा करके.
बाद में देखा नो बॉल है, बैट्समैन हंस के पागल हो गया वहां पे। ये वही तो लड़ाई हुई थी साई किशोर और जगदीशन की। हाँ, साई किशोर और जगदीशन फॉट इन अ TNPL मैच जहाँ पे अश्विन को बीच में आना पड़ा। ये लोग बहुत, अरे दे गेट वेरी लाइक या यार, इतना कंपटीशन होता है। आप इंडिया की टीम निकाल सकते हो तमिलनाडु से 11 लोग T20 के लिए, आराम से निकल जाएंगे। डाल तो सकते हैं बट ठीक है। अब ऐसे नहीं कह सकते, अश्विन भी कभी कभी बीच में पागल हो जाता है। बीच में अभी एक वीडियो आया था अश्विन का, जो डगआउट से ऐसे ऐसे कर रहा था, वो मारूंगा पकड़ के ऐसे ऐसे। अश्विन He अश्विन was actually abusing in Tamil. अश्विन But पहले क्वालिफायर में ना आराम से जीत रहे थे, फिर 2-3 विकेट गिर गए तो मैं थोड़ा टाइट हो गया। वो ऐसे बैठा हुआ है बताइए क्या। बट यार अश्विन हमेशा क्रिकेट के बारे में बात करता है, हमेशा। उसके व्लॉग्स जगह मस्त होते हैं, वो उसमें भी क्रिकेट के बारे में बात करता है। क्या लगता है डॉग के साथ सही है। नहीं, बहुत सही है, बहुत सही है। I think he lives, he breathes cricket, and that is what he knows best. And I think after retirement, we are definitely going to see him in the commentary box. नहीं, Uh, आई थिंक विल सी हिम एज अ कोच, आई थिंक। bowling mentor. एंड इफ अश्विन एंटर्स द कमेंट्री बॉक्स, वो इतना ब्रूटली ऑनेस्ट होने वाला है ना, इतना ब्रूटली ऑनेस्ट होने वाला है ना वो, बहुत मजा आएगा। बट आई थिंक ही वांट्स टू बी ऑन द ग्राउंड, थोड़ा I think he also टेक्निक। wants the mic. I think he's just showing it with his YouTube channel. He also wants the mic. इफ He, ही he डज, he would want it. He would probably be in the Chennai Super Kings dugout, mentoring them during let's say the IPL, or and during the TNPL again, जहाँ after retirement हो जाएगा तो फिर किसी ना किसी franchise के साथ काम कर रहा होगा. But I am 100% sure that he's definitely going to have the mic in front of him at least for internationals. And जैसे दिनेश कार्तिक के साथ होता है ना, एशेस के लिए भी बुला लेते हैं, हो सकता है कि अश्विन को भी बुला ले, आ जाओ तुम भी आ जाओ। दिनेश कार्तिक इज गोइंग टू प्ले ऐसे T20, ऐसे हाँ, 20 फॉर पाल रॉयल्स। फॉर द रॉयल्स। ये लोग रिटायरमेंट से लोग को क्रिकेट वापिस खेलना ही नहीं आए है, जा रहे कुछ भी भाई। करो। फुल ऑन यू बट टर्न। अश्विन 41-42 तक रिटायर नहीं, और नहीं होना चाहिए। एक मैं बस चाहता हूँ एक बार अश्विन को व्हाइट बॉल टीम में लेके देखो। जो गंभीर को चाहिए ना, जो ढूंढ रहा है ना लोगों में, वो उसमें है। वो लेके आओ उसको कि यार पता नहीं उसको एकदम से ही पता है, ही जस्ट वेंट अवे फ्रॉम द रडार फॉर व्हाइट बॉल क्रिकेट। आई डोंट नो व्हाई यू वांट स्पिनर, ये आई डोंट 2023 वर्ल्ड कप डिड नॉट हैव अश्विन। नहीं, वी हैड बट ही वाज इन द He 15। was benched, which was always the case, where Ashwin is always benched. बट यार उसमें जगह भी नहीं थी ना यार, अश्विन को कहाँ खिलाते? 2023 वर्ल्ड कप ओडीआई में तो वी हैड अ गुड टीम। बट ऐसा नहीं है ना यार कि ऑस्ट्रेलिया है तो खिला दो उसको, ऐसा भी नहीं No, हो no, सकता। I'm saying that as an extra batter, you could have him as an extra batsman and a all-rounder. Trust me, it's not just about him playing, it's also about the presence that he has. कभी भी एक चीज अश्विन के बारे में ऑब्जर्व करना, ठीक है, जब वो विकेट लेता है ना उससे पहले, हम टेस्ट मैच में देखते हैं ना कि यार आगे बैट्समैन को खिलाओ, ही शुड प्ले ऑन द फ्रंट फुट, शुड प्ले ऑन द फ्रंट फुट। अरे बैक फुट पे क्यों खिला रहा है, शॉट क्यों डाल रहा है? वो 2 बॉल फ्रंट फुट खिलाता है, एक बैक फुट, फ्रंट फुट बैक फुट फ्रंट फुट बैक फुट करता रहता है, और फिर वो स्ट्रेट बॉल चला जाता है और खट से एज। बहुत स्मार्ट क्रिकेटर है वो। इसलिए मेरे को लगता है कि अश्विन की प्रेजेंस इन एंड अराउंड द फील्ड हेल्प्स अ लॉट। इनफैक्ट अश्विन के इंटरव्यू में हमने डिस्कवर किया था कि डेविड वार्नर ने बोला हम तो पॉकेट्स में खेल रहे थे, पॉकेट्स, छाती पे बॉल डाल रहे थे तुम्हारी। तो देखते हैं, ठीक है चलो, sometimes you get बट swayed दिस in दिस story. दिस सीजन ऑफ TNPL वाज गुड गाइस। आई मीन आप जा सकते हैं, मतलब अभी आपने नहीं देखा और अगर आपको देखने हैं कि और कौन से स्टार्स हैं तो they are the YouTube's sorry the videos are there on YouTube and fan code also. I think this time they And put there. did it You on can buy the fan season code. pass for it. हाँ, मैंने तो स्टार्स पे देखा था। बट good, it's good in a way. I think this tournament has been really special in a lot of ways for the past good 7 8 years in fact, for the IPL as well. But moving on, there's another test series that is about to begin tomorrow, which is South Africa tour of West Indies after a heavy defeat of 3-0 from England. They are expecting themselves, or in fact, they've announced themselves to be ready.
for this South African series. South Africa ने अभी अभी वेस्ट इंडीज चैंपियनशिप 11 के साथ खेला है, और वहां पे भी उनका अच्छा खासा एक वार्म अप मैच हुआ था, और अच्छा खासा मतलब खेले भी हैं. So yeah, it's going to be very difficult. What do you think for West Indies? Again, I think this is going to be a Herculean task. Are you looking at it from a two cricket teams, or if you look at the background where both these teams come? No, I am Let's just take the looking first. at the current skill. Background, there is a lot of background for both teams. Okay, No, no. there are. I'm saying you can draw parallels to both of them, and you can draw complete parallels. Okay, Hmm. and I tell you, West Indies and South Africa both have been affected by the kind of T20 culture that we have, that they have. Sorry, ये लोग भी T20 खेलने चले गए, ये लोग भी T20 खेलने चले गए. Hmm. Both player associations and the board were at loggerheads at least 3-4 years ago. कि भाई ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं. ठीक है. South Africa, in fact, had in 2020 had the CSA board suspended by their Olympic committee करती है, they had suspended them for allegation, mismanagement, etc. Both of them, both their captains are constantly saying that we have to constantly rebuild, and rebuild our teams. Okay, of course, West Indies does not have the problem of the transformation part of it. South Africa has the problem of transformation part of it. And now there were these lot of questions that people said that, if you're a player of color and you are in the team only because you're a player of color. So a lot of people of color said, "Yeah, ये तो वही बात हो गई ना. They were in the team because they are white. I'm in the team because I'm a player of color." So they started feeling, oh, extra pressure. I have to prove myself. I have to do this. I have to do that. Okay. Most of the players for West Indies are not available to play. Like Powell nahi hai, Shea Hope nahi hai. Most of the players for South Africa are not available. In fact, this time they have a better team than the one that went to New Zealand. Okay. Both of them are trying to rebuild. Both of them are trying to enter the WTC cycle and put eyeballs on a test match. South Africa is sworn away by rugby. West Indies is sworn away by basketball. And the fame that US की वजह से जो भी fame basketball को मिला. So for both of them, it's not just about winning a test match, it's also about winning. तू Instagram देख यार, वेस्ट इंडीज वाले बोल रहे हैं कि आप आओ, हम सवाईना पार्क में खेल रहे हैं, have a drink, eat food, please watch our matches. Can you believe that? The cricket team has to go. इंडिया में बोलना पड़ता है बस इतना ही अलाउड है और कोई नहीं आएगा. ये भी लेके नहीं जा सकते, वो भी लेके नहीं, खाना भी नहीं मिलेगा, खाना महंगा मिलेगा स्टेडियम में, फिर भी लोग आते हैं. 5,000 का टिकट ले लो, 1 लाख का टिकट ले लो. They are just saying, please, can someone come and watch? So that is the context of this match between West Indies and South Africa. That is how we should support and watch these matches as cricket fans. At least they have one, me, Krishna and Ankit, 6 eyeballs. But एक नया change आया है. I think South Africa now is planning to get Tristan Stubbs in as number 3. And कोच ने बोला है, शुक्री कॉन्राड ने, कि भाई मेरे को इसमें कुछ दिखता है. He seems to be like a strong lad, who can actually benefit the team, etc., etc. So he favors him a lot. उसके बाद अगर आप एक्चुअली देखो तो आपके पास है एडन मार्करम, यू हैव टोनी, जोरजी, और फिर उसके बाद David स्टब्स Bellingham. आएगा. और ये तीनों के तीनों ना काफी लंबे चौड़े. Hmm. एंड देन कम्स इन कैप्टन बबूमा. बेचारा वही, he's under a lot of pressure यार, पता है. And He's under a lot of pressure, but I think he's a good guy. He's a good player, yeah, and I'm sure that he'll find a way out, because he's also a very smart player, क्योंकि it is not easy, no matter how much, मतलब बहुत सारी जगह बोलते हैं यार, मतलब, but it is still very difficult to lead your team into a semi-final, into a World Cup also, whether it is 50 overs especially or when you whatever, are not in form. whatever, हाँ. And that too in a white ball. और उसने किया है यार, उसने as a captain अच्छा काम किया है, because being a player of color again, it is not very difficult to, sorry, it is not very easy to, sort of lead a South African team. And you know speaking of course these transformation issues, 26th of July को इन लोगों का एक इवेंट हुआ था 3 दिन का. इट वाज अ डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन दी इन डाबा कॉन्फ्रेंस करके हुआ था इन लोगों का.
एंड उसमें ये डिस्कस किया गया था कि किस तरीके से हमें 2027 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर करना है, कि जितने भी सेक्ट्स हैं हमारे सोसाइटी के, मतलब आपके प्लेयर ऑफ कलर हैं, और मतलब और ज्यादा इंक्लूड हो पाए, क्योंकि काफी टाइम से ये डिबेट चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखो तो साउथ अफ्रीका का जो पॉपुलेशन है वो 84.8% जो है इज पीपल ऑफ कलर। एंड उसमें अगर आप देखो तो उन लोगों ने क्या किया है बहुत टाइम से, मतलब कई सारी बार ऐसी कई कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जहाँ पे 1992 में दे हैड एन ऑल वाइट टीम, ठीक है। Yeah. 2016 में अगेन दिस केम अप, 2024 में अगेन फिर सिर्फ रबाडा था, बट देन लेटर ऑन दे गॉट इन अदर्स एज वेल। सो अब वो उनको लग रहा है कि अब ना वो एक पूल बनाएंगे और हर जगह से टैलेंट स्काउटिंग करेंगे, ताकि 2027 तक उनके पास आइडेंटिफाइड हो। क्योंकि उन लोगों का ना एक बहुत सिंपल रेशो है, जहाँ पे in the squad that they select, which is going to be the top 15 players who are going to represent the nation in any, let's say, ICC event or world events, 6 लोग कम से कम कलर प्लेयर ऑफ कलर हों, और उसमें Hmm. से कम से कम 2 लोग अफ्रीकन African. ब्लैक्स हों। सो ये एक बहुत तगड़ा चैलेंज होने वाला है उन लोगों के लिए, और इसके ऊपर But they have में to average it through the season. पहले हम्म, मैच में होता था कि आपको 11 में फील्ड कराना है। अब आप एवरेज कर सकते हो, मतलब अगर आपने यहाँ पे कम खिलाए तो अगले मैच में दो ज्यादा, वैसे टीम कॉम्बिनेशन नहीं के, विच इज जरूरी अगेन नहीं। 11 पे उन लोगों ने कहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन मेक्स द कट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग 11, बिकॉज प्लेइंग 11 अगेन विल हैव टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ conditions, this and that they have debated about. So that can still be structured, but at least in the top 15 इतना तो होना ही चाहिए। एंड नो ऑफ नो, कोर्स यू हैव अगर टू इतना फील्ड। है, इन द टॉप 15 लोग लेके जाते हो ना आप किसी भी आईसीसी इवेंट में, या फिर कितने। आई थिंक यू हैव टू फील्ड इन द 11, लाइक आपको फील्ड पे इतने लोग उतारने, 4 से 6। नहीं नहीं नहीं, सो ओके, सो इट वाज द केस, बट हाँ, राइट नाउ विथ रॉब वॉल्टर व्हाट ही इज क्या? मेंशनड इज दैट 15 लोग हम इतने जो है खिलाएंगे, ठीक है, इतने लोग हम लेके जाएंगे। दैट इज व्हाई वी आर नाउ ट्राइंग टू डेवलप एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, एंड विद इन दीज 3 years दैट वी हैव, ठीक है, we'll try and identify as much talent, but in the 15 we will want to sort of incorporate these things. This is 6 का रेशो क्या कहते हैं, 2-9, सो 9:6 का रेशो हम डालेंगे, उसमें 2 अफ्रीकन ब्लैक। बट 11 क्या होगा, वो अगेन दिस इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन द डे, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस, इट डिपेंड्स ऑन द कोच। एंड साउथ अफ्रीका में दोनों में, मतलब व्हाइट बॉल में भी और रेड बॉल में भी, दोनों में कोच ही प्लेइंग 11 डिसाइड करता है। So whether it is Conrad for Tess or whether it's Walter for the white ball side, so दोनों में कोच ही डिसाइड करता है कि क्या प्लेइंग 11 होगी। कैप्टन का से हो सकता है ऑफ कोर्स, बट अगेन द सिग्नेचर्स आर दैट ऑफ द हेड कोच। So yeah, it's going to be a very interesting series to see, and let's hope कि एक अच्छी सीरीज मिले, after of course West Indies एक heavy thrashing से आ रही है, so I'm sure that they have a point to prove, and because of all that you mentioned, that you know उनका background and जिस तरीके से वो लोग को बुला रहे कि आओ हमें देखो, that in itself अगर लोग आते हैं तो that in itself should sort of motivate them to do well, and South Africa बट again, नहीं, yeah. तुझे वो बोल रहा है ना, हैवी थ्रैशिंग आई है। In an interview, this guy, Henry Cole said that regardless of the way we lost the matches, the most important learning for the West Indies team was कि यार 4 दिन तक या 5 दिन तक कंसिस्टेंटली मेंटली फ्रेश रहना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उतने सारे टेस्ट मैचेस नहीं खेले किसी। अब एक सेशन के लिए बहुत, यू आर इन द गेम एंड एवरीथिंग, 2 सेशन के लिए, बट देन यू स्टार्टेड स्लोली वेयरिंग ऑफ। So he's very positive. The kind of West Indies team that he has created is very positive. जैसे इसने मिकाइल लुइस ने बोला कि यार ये लोग मेरे लिए चीयर कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। So after 1 match they got acclimatized to the situation. It's just that there were days or a day when they lost test matches, when they got too tired because they're not used to playing for 5 days, English conditions, etc. Now they're in their own home conditions. For South Africa, for South Africa, the most important thing is to protect players like David Bedingham.
हारने के बाद सब ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। अरे यार, it's genuinely a good effort यार. At least that they made changes in the team. कुछ ऐसे लोग थे जो बेंच पे बैठे थे, उनको हटा दिया. They've rested Alzari. Jozo was also saying there's workload, which I think is because he's bowling a little this and there. So they said T20 खेलता है इधर जा रहा है, but that's different thing. But for South Africa, it's very important for players like David Bedingham. David Bedingham is 30 years old. He's a Kolpak player. He had almost quit. Ashwin Prince ने बोला कि देखो वापस we are losing out players. And David Bedingham 3 साल यूके में रहा और एक आध साल रहता तो इंग्लैंड के लिए खेलने वाला था. And he said this is the problem with cricket South Africa, that so many players go there and apply for citizenship through maternal, paternal, grandfathers जो भी है. और बोलता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम यहाँ पे उनको भाव नहीं देते हो, ना पैसे देते हो. मतलब केप कोबरास का लेवल भी, डेविड बेडिंगम बोलता उतना लेवल ही नहीं था. मैं रन मार रहा था, ना मुझे टीम में ले रहे थे, ना मुझे मजा आ रहा था. मैं चला गया उधर खेलने, वहां से खींच के लाया है उसको. और एशफुल प्रिंस की जगह अब ये अली खान को लेके आए एज अ बैटिंग मेंटर फॉर दिस टाइम. सो it's going to be very important for these guys play a lot of county and But it's sort of important lose for to. Andre Burger and players like Rabada as well. Sorry, Lungi Gedi as well. हाँ. क्योंकि वो लोग भी क्या कहते हैं, इतना टेस्ट मैच नहीं खेलते हैं अनफॉर्चुनेटली, एंड्रे बर्गर और ये सब. बट अभी रिसेंटली ऑफ कोर्स इंडिया सीरीज में खिलाया था, बट दे weren't the first choices in Sorry. fact to sort of make it to the test मेरे squad. फेवरेट प्लेयर को नहीं लिया, हम्म. बैटमैन को नहीं लिया. हाँ यार, उर्मिल वाटनी को नहीं. पर यार बैटमैन ठीक है, उसका 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 ये टी भी है ट्वेंटी ना खेल रहा कि है, ऐसे टी टी ट्वेंटी ट्वेंटी 100 खेल हाँ, रहा है. वो ऐसा ही प्लेयर. अभी तो T20, अभी उसको पहले व्हाइट बॉल में देखेंगे, तराशेंगे, फिर उसके बाद ही होगा. भाई 30 साल तो हो गया अब तराश हो गए. तो यही है भाई, अब 30 साल में तुम डेब्यू कराओगे तो थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ेगा ना तुमको. Anyway, guys, so that's pretty much it, from this episode of Everything Cricket, and of course, uh, like, share, and subscribe. You all know where we are. We are on YouTube. We are on Facebook. We are on X. We are on Instagram, and Spotify and Amazon Music. So yes, wherever we are. एक तो मैं जगह ही भूल जाता हूँ हम कहाँ कहाँ पे हैं. बट जहाँ जहाँ पे भी है हम वहाँ पर लाइक कर दीजिए, या जहाँ जहाँ आप सुन रहे हैं उसको या देख रहे हैं उसको लाइक कर दीजिए. और अगर आप मेंबरशिप नहीं लेना चाहते तो एटलीस्ट शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो छोटा मच मोटा गाइस. कमेंट कर दीजिए. छोटा एक मोटा. बंदे ने लिखा है छोटा मोटा. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच.